Good afternoon. Sir. Good afternoon. Sir. Sir, my marks, sir, how much, sir? सर आज आप मार्क्स बताइए सर प्लीज। सर सारे टीचर बता रहे हैं सर, एक दो में तो ये भी सर कहते सबने हैं बता दिए। बताएंगे तो हम बताएंगे। Oh, good. और सर सब टीचर्स बता ही रहे हैं मार्क्स। हाँ हाँ सर सुबह से 3 टीचर्स बता चुके हैं सर, प्लीज बता दीजिए। हाँ हाँ बेटा हाँ। वेरी गुड। सर मार्क्स। गुड मॉर्निंग वैसे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सर रीजनिंग के बता दीजिए, मैथ्स का बताइए। नहीं सर मैथ्स के बता दीजिए, रीजनिंग के रहने दीजिए सर। हाँ सर, कोई भी एक ही सर बता रीजनिंग दीजिए। मैथ्स दोनों के बता दीजिए। सर बस बता दीजिए प्लीज प्लीज सर। Start your videos, everyone. सर फिर बता देंगे। हाँ Yes, sir. लो फिर मैं बता दूंगा। सर वीडियो ऑन करो। पहले वीडियोस ऑन करिए सब लोग, फिर मैं बता दूंगा कि मैं मार्क्स नहीं बताऊंगा। वीडियो ऑन करो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं मार्क्स नहीं बताऊंगा। सर प्लीज बता दीजिए ना। बेटा आई कैन टेल यू द मार्क्स टिल आई गेट परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। Sir, सर हमें 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पता लग गए हैं। मैं बेटा yes, आप लोग तो जानते सारे हैं टीचर बोल रहे हैं परमिशन ले ले। दो टीचर्स आर वेरी डेयरिंग, आई एम नॉट सो डेयरिंग। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, सर मेरे आज अंदर इतनी हिम्मत नहीं सर है। रिकॉर्डिंग ऑफ करके बता दीजिए। yes, sir. यस सर, अरे रिकॉर्डिंग ऑफ करके बता दीजिए। नहीं बेटा, ऐसा ऐसा नहीं होता। अच्छा सर, ग्रुप पे डाल दीजिए। सर एक्टिंग करना कि नेट टूट गया था 10 मिनट के लिए। सर हम्म आरटीवी पे डाल अब बच्चे दीजिए। की एक्टिंग करेंगे। जैसे आरटीवी पे डाल दीजिए, हम पूरी let दुनिया में फॉरवर्ड let let's do the work that we were doing. Exercise 16A. In 1 or 2 days you are going to get your marks. So मतलब 2-3, I think in this week, so 2-3 days, 4 days, you will get all सर प्लीज your आप report बता दीजिए। card. Exercise 16A, and we are on question number 7. We have done or not? The perimeter of a parallelogram is 140. One of the sides is longer than the other by 10 centimeters. Okay. Question number 7 we have to do. We have done till question 6. Everyone, please start your videos and pay attention. So there is a parallelogram. There is a parallelogram. The perimeter of the parallelogram is given. Perimeter is 140 centimeters. ठीक है? One side is longer than the other by 10 centimeter. इस parallelogram की एक साइड ऐसी है जो दूसरी से 10 सेंटीमीटर बड़ी है। ओके, एंड वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हमको बचपन से पता है, ये बात पता है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यू ऑलरेडी नो इट। My video is coming fine, video and audio both. yes, sir. सर मैंने अभी सर रुमा मैम से पूछे, वो बोल रही है बता दूंगा। ठीक है बेटा। तो this is the parallelogram in which one side is longer than the other by 10 centimeters. So let the side BC be x. अगर हम BC को x मान लेते हैं, let BC is equal to x, then फिर क्या होगा? Can you tell me then what will be the length of
side AB, it will be 180 माइनस 180 में BC साइड की ये बता रहे हैं AB, ये कह रहे हैं एक साइड दूसरी से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो ये x + 10 हो जाएगी. ओके, x + 10. Okay, now let's use the perimeter to find the sides of the parallelogram. Okay, so अगर if AB is 10 x + 10 तो CD भी x + 10 होगी, because opposite sides are always equal. BC अगर x है तो AD भी x हो जाएगी, again the same reason. Now let's use this. Perimeter is equals to AB plus BC plus CD plus AD, sum of all the sides. सारी sides को ऐड करके perimeter आता है. What is AB here? AB is x plus 10. What is BC? BC is x. CD is again x plus 10 and AD is x. So perimeter is equals to 4x plus 20. And we already know the value of perimeter. This is 140. So 140 equals to 4x plus 20. We have got an equation. So 120 is equals to 4x. X equals to 120 upon 4. This is 30 centimeters. X की value आ गई. Now you write all the sides. AB कितनी थी? X plus 10. तो ये हो गई 40 centimeters. BC कितनी थी? BC थी X. So this is 30. And then the side CD. This is also x plus 10. So again 40. And then the side AD. AD is x. So 30 centimeters. These are all the sides of the parallelogram. Ask me if there is any doubt in the question. Sir, Yes, sir. sir, if you are not allowed to tell the marks, then you can tell our percentage of maths. Oh, And so if somebody asks you that is why did you tell the marks, then you can tell that I was teaching them percentage. oh. Good point. How much are you expecting, Anshumar? What is your expectation? Sir, 35. 35. Oh. Om, what is your expectation from the exam? Maths UT2. Maybe हो सकता है मैं आपकी expectation अगर सुन लूं तो मेरा मूड हो जाए बताने का. तो नए क्लास में सर. ओम नहीं है? Om is a very brave boy. Akshat beta, what is your expectation? Sir, 70 to 75%. Percent नहीं, out of 40 मुझे बताओ कितना. What is your expectation? कि क्या लगता है कितने Sir, आएंगे? above 30. Above 30. Good. Manrina. Yes, Manrina Raval. What is your expectation? Hello, Manrina. Hello. Sir, are you telling marks? Yes, बेटा. Yes, yes. Sir, मेरे कितने आए हैं? मैं पहले बच्चों से ये 34 पूछ रहा हूँ, बताया उसके तुमने. बाद मैं बच्चों से पहले पूछ रहा हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशन, उसके बाद मेरा मूड हो गया अगर मैं बता दूंगा. सर Yes. मेरे से पूछ लीजिए. What is your expectation? सच में बताना है, ऐसे नहीं खाली हवा में तीर नहीं मारना है. सर
सर 35 से ज्यादा। 35 से ज्यादा? क्या बात है। ओहो। कितना आया सर? अब तो वो तो अभी रुक जाओ अभी जरा। मंदीना, मंदीना, जो मैसेज कर रही है उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओ, उसको जरा प्राइवेटली मैसेज करके उसको बोल दो कि सर कुछ बात सर सर आप तब करेंगे। तक किसी और से पूछ लीजिए ना, सर और भी एक्सपेक्टेशंस बच्चे ऑफ हैं सर एक साथ। मार्क्स। सर बहुत सारे बच्चे हैं सर। अच्छा, और कौन कौन बैठे हैं? कुछ वीडियो इज ऑन नहीं है, क्या फायदा है बात करके बच्चों से। ये सिराज पचौरी, बीटीएस आर्मी। सर पता नहीं। पता नहीं, बीटीएस आर्मी। हाउ आर यू? ठीक ठाक। ठीक ठाक क्या हो गया? कोई टेंशन हो गई क्या? नहीं सर सर। सबके सोते हो रहे होंगे सब। हम्म? नहीं सर। नहीं तो क्या एक्सपेक्टेशन है मैथ के मार्क्स की? सर पता नहीं। 40 कुछ तो होगा, 40 बोल दे। कुछ तो होगा। अंशुमन तुम्हें कितनी एक्सपेक्टेशन है ये बताओ। वो बता चुका है 35। मैंने बता दी। हाँ, यस। सर उसकी कितनी थी? अरे ओम ओम 35 बोला उसने। हाँ यस, राज पचौरी, बीटीएस आर्मी। सर मेरे घर में बहुत शोर हो रहा है। शोर हो रहा है? अरे मैं तो आपको मार्क्स नहीं बता बताने। सकता। अच्छा, शोर हो रहा है इसलिए नहीं बता। और मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें? अरे तो मार्क्स बोलने में क्या जा रहा है? कौन सा शोर हो रहा है? जल्दी से मार्क्स बोल दो। सर मुझे नहीं आइडिया। नहीं आइडिया है? अच्छा, मंदीना नहीं है, गायब हो गई। प्रांजलि, कुश, शोभिया, प्रांजलि कितने आ रहे हैं बेटा ड्यूटी में? सर 20 से ज्यादा आएंगे। 20 से ज्यादा आएंगे? 20 तो कम है। 20 सर मार्क्स अब तो बता दीजिए सर मार्क्स। मैं जरूर बता देता अगर मेरे पास लिस्ट होती अभी तो। सर तो आप सर अभी जितने बच्चे क्लास में होंगे कॉपी चेक कर। चलिए लेट्स डू सर क्वेश्चन नंबर। मेरी कॉपीज परफॉर्मेंस बता दीजिए कैसी थी बात। कॉपीज आर ऑलरेडी चेक्ड। सर मेरी ठीक है, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। गुड परफॉर्मेंस। योर परफॉर्मेंस इज गुड बट माय एक्सपेक्टेशंस आर हायर। ओके। सर पिछली वीडियो में भी आपने यही बोला था। हाँ और क्या, बिकॉज इट इज द ट्रूथ। योर परफॉर्मेंस इज गुड बट माय एक्सपेक्टेशंस आर इवन हायर। ABCD is a rectangle. Question number 8. In this, DM is perpendicular on the diagonal AC. DM, बोले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। DN है, सॉरी, DN and BM. DN and BM are perpendiculars on the diagonal AC. We have to prove that triangle BMC to prove करना है इस क्वेश्चन में। To prove triangle BMC is congruent to triangle DNA. Okay, BMC is congruent to triangle DNA. Is it true that BM is equal to DN? वो तो चलो बात की बात है, पहले यही प्रूव करना है। ओके, आइए कैसे प्रूव करेंगे? टेल मी। Triangle BMC, can you see triangle BMC? Let me shade it for you for your help. Triangle BMC, this one, and triangle DNA, this one.
So we have to prove that the two triangles are congruent. Congruency you have studied in class 7th also. Congruency of triangles यहाँ पर फिर से आ गई, आगे 9th क्लास में फिर से आएगी, 10th में फिर से चलो आएगी, मैं भूल गया क्या 9th में चैप्टर है पूरा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स अगेन 7th क्लास की तरह। 7th में थोड़ा छोटा था, 9th में बहुत बड़ा है। एंड देन in your higher classes you will be using every now and then, ज्योमेट्री में बार बार यूज होती रहेगी congruency of triangles chapter. Is it true that BM is let's prove the congruency. Okay, let me show you because I know most of you must have forgotten it, तो मैं याद दिला दूंगा. So we will write in triangle BMC and triangle DNA, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी करनी है। सबसे पहले BC is equal to DA. Can you tell me the reason why BC is equal to DA? The side BC is equal to the side DA. Why? Opposite sides are always equal. Opposite sides of a parallelogram. Opposite sides are equal. Opposite sides of a parallelogram, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। Opposite sides of a parallelogram, that is why they are equal. Second thing here, the second thing is, what is the second thing? Angle DND, नहीं पहले ट्राइंगल BMC का पार्ट लिखेंगे पहले। एंगल BMC, The DCM. angle BMC is equal to angle DNA, each 90 डिग्रीज। दोनों एंगल ये 90 के क्यों हैं भाई? बिकॉज हमको स्टार्टिंग से ही दिया हुआ है that DN is perpendicular on AC and BM is also perpendicular on AC, तो ये तो भाई 90 के हो गए दोनों एंगल। वाह, दो एंगल भी इक्वल मिल गए। एंड नाउ द थर्ड थिंग, एंगल BCM is equals to angle DAN. These are alternate interior angles, alternate interior angles हैं ये हमारे। कौन से वाले दिखाता हूं मैं। एंगल BCM, ध्यान से देखिए कहां गया, ये रहा, ये वाला एंगल दिख गया। एंड एंगल DAN, ये वाला एंगल, ठीक है बच्चों। Why the two angles are equal? Because they are alternate angles. आपने पढ़ा है Z बन रहा है, देखो मैं Z भी मैं ही दिखाता हूँ। ये देखिए मैं डॉटेड लाइन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको Z, ये Z बन रहा है। ये देखिए द साइड, दिख गया आपको Z, डॉटेड लाइन से मैंने बनाया। द साइड D इज पैरेलल टू BC। DA और BC पैरेलल है, क्यों है भाई? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड भी पैरेलल होती है। सो पैरेलल है, इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ओके, नाउ तीन चीजें मिल गई हमको फिगर में, दो साइड, एक दोनों की एक साइड इक्वल है और दो एंगल्स इक्वल है। ओके, नाउ व्हाट, नाउ वी कैन से दैट देयरफॉर ट्राइंगल, अब हम बोल सकते हैं ट्राइंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DNA by, yes Anshuman, by उनके से एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल है। तो जैसे BCA और CAB, BC, Z बना रहे हैं। BC कौन सा? BCA और फिर CAB, फिर Z। BCA यस सर, और CAB।
तो ये Z बनाना है ना सर, तो ये तो बेटा सेम ही एंगल हो गए, BCA तो वही एंगल हो गया ना, चाहे उस एंगल को आप BAC BAC तो ट्राइंगल के अंदर ही नहीं है, BAC एंगल तो तो, मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं है तो इक्वल, बात तो सही है, ये दोनों एंगल हैं इक्वल बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दीज ट्राइंगल्स, ठीक है, इसलिए गॉट इट। सो द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। First part we have already proved. Now one more thing we have to tell here, whether BM is equal to DN or not. BM और DN की लेंथ इक्वल आ गई, yes आ गई भाई, BM equals to DN। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, BM is equal to DN, ये भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। अब रीजन क्या लिखते हैं याद है, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, चाहे पियो कब तोड़ो, CPCT, चाहे पियो कब तोड़ो, corresponding parts of congruent triangles। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, 5 स्टेप का क्वेश्चन है, बताइए। चलिए हटा दें बेटा। Question number 9, it was a good question, 8th one, 9th is again a good question। I will tell you how to do the question without using congruency। In the book, in the hint, they have used congruency to prove the given thing। I will help you do the question without using congruency। Okay, so there is a parallelogram in 9th question, and in the adjacent figure ABCD is a parallelogram and line AE and CF bisect the angle A and angle C respectively। देखिए सबसे पहले there is a parallelogram, see the figure, try to understand what is given। ABCD parallelogram, ठीक है बेटा, फिगर को देखते जाओ, तो मैं बोल रहा हूँ just look at the figure। ABCD is a parallelogram, here AE को ध्यान से देखिएगा, AE यहां से निकला, ये AE and CF, AE and CF, ठीक है, AE and CF are bisectors of angle A and angle C respectively। बाइसेक्टर का मतलब मालूम है, एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, मैं सिखा देता हूँ बेटा, देखो। यस, टू इक्वल हाफ। सपोज ये एक एंगल है, मैं आपको बताता हूँ, ये एंगल 50 डिग्री का है, मान लीजिए 50 डिग्री का है कोई एक एंगल। अब एक ऐसी लाइन निकली यहाँ से, ग्रीन कलर की एक लाइन निकल रही है यहाँ से बीच में से, वो क्या कर रही है, वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में काट रही है। ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन है इसी को बाइसेक्टर बोलेंगे। दो एंगल्स को काट रही, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में काट रही है। तो ये क्या कर रही है, इसने दोनों एंगल्स को क्या करा, 50 का आधा 25 बना दिया। तो हम ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको बोलेंगे बाइसेक्टर। इनफैक्ट नॉट ओनली बाइसेक्टर, इट इज एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इसने एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में काटा है। समझ में आया मीनिंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर? सो हेयर AE इज प्लेइंग द सेम रोल, AE का यही रोल है यहाँ पर, इट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A and CF is the angle bisector of angle C। We have to prove in this question, to prove लिख लेते हैं क्या प्रूव करना है, that
AE is parallel to CF. AE is parallel to CF. This is what we have to prove. Okay. So I know it is a little difficult question from the others. It is something new, not difficult actually. Something new. ऐसा कुछ difficult नहीं है. So let's name some of these angles. मैं कुछ angles को यहाँ पे नाम देने वाला हूँ. Please look at this carefully. Angle 1, इस वाले को बोल देते हैं angle 2, and ये angle एक मैं मार्क कर देता हूँ angle 3. ओके, बहुत इजी है प्रूव करना है AE एंड CF पैरेलल. एक कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिलाता हूँ, which you have studied in class 7th में आपने एक चीज सीखी थी, corresponding angles. याद है corresponding angles? if two lines are parallel तो corresponding angles equal होते हैं. ये वाला, हाँ, यस सर. corresponding angles ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं, एंड एक एंगल इंटीरियर वाले रीजन में होता है और एक एंगल एक्सटीरियर वाले रीजन में होता है. मतलब लाइंस के बीच में होता है एक, और एक लाइंस के बाहर होता है. दोनों सेम साइड में होते हैं ट्रांसवर्सल के. तो दीज टाइप ऑफ एंगल्स आर नोन एज corresponding angles. एंड जब ये लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं, सपोज लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल, तो corresponding एंगल्स हमारे इक्वल हो जाते हैं. यानी कि अगर ये एंगल 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा. ओके, सो ये होता है corresponding एंगल्स. और इसका उल्टा भी बिल्कुल सही होता है. उल्टा क्या है, अगर पहले से बता दिया जाए आपको कि corresponding एंगल्स इक्वल हैं, सपोज मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ये भी 50 है और ये भी 50, ये आपको पहले से बता दिया गया. अब क्या हम उल्टा बोल सकते हैं? अगर ये दोनों 50-50 हैं, इक्वल हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं फिर तो पक्का ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी. बोल सकते हैं, तभी तो इक्वल हैं corresponding एंगल्स. लाइंस पैरेलल होंगी तभी इक्वल आ रहे हैं. यस, तो ये थ्योरम को का कन्वर्स हमने यूज करा. कन्वर्स बोलते हैं इसको. किसी थ्योरम का उल्टा यूज करना, यानी कि कन्वर्स. बेटा एक सेकंड वेट करिए, मैं अपना लिंक शेयर कर दूं नेक्स्ट क्लास में. आई हैव माय नेक्स्ट पीरियड इन जस्ट अ मिनट. ये मुझे ब्रेक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. इतना अच्छा क्वेश्चन चल रहा था, बीच में रुकना पड़ गया मुझे. Excuse me, sir. यस बेटा. Sir, have you told the marks? नो बेटा. Okay, sir. वेयर वर यू बेटा? Sir, I was joining. शेयर द लिंक. या तो 50-50 अगर हैं दोनों, तो हम उल्टा बोल सकते हैं कि पक्का फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी. तो वी आर गोइंग टू यूज दिस. आइए करते हैं क्वेश्चन को. हेयर नाउ प्रूफ यानी कि जो काम हम ये बात प्रूव करने के लिए जो सबूत यहाँ पर देंगे वो so first of all, angle A is equals to angle C. Why? एंगल A जो है पूरा वो एंगल C के लिए इक्वल होगा. Why? Because these are opposite angles of a parallelogram. ये एक पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, दो पैरेलल लाइंस बनाइए और आगे ग्राम लिख दीजिए. ठीक है. तो पैरेललोग्राम, opposite angles of a parallelogram, angle A, angle C. Therefore, अगर एंगल A एंगल C के इक्वल है तो half of angle A dividing by 2 both sides will also be equal to half of angle C. एंगल A का आधा कर दें तो एंगल C के आधे के इक्वल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अंशुमान का वेट 50 kg है और मान लीजिए ओम सारस्वत का वेट भी 50 kg है. इक्वल है दोनों का 50-50. तो मैं दोनों के वेट का अगर हाफ करूंगा
तो कितना मिलेगा मुझे? अंशुमान के वेट का हाफ 25, ओम के वेट का हाफ वो भी 25, तो भी तो इक्वल ही रहेगा। तो इफ टू थिंग्स आर इक्वल देन देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल। तो half of angle A is equal to half of angle C, and in place of half of angle A I am going to write angle 1। क्या मैं half of angle A को angle 1 लिख सकता हूँ? फिगर में देखिए, half of angle A को क्या मैं angle 1 लिख सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल। half of angle C को क्या मैं angle 2 लिख सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल। इससे मुझे angle 1 angle 2 के इक्वल मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। वाई? एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल क्यों है बताइए मुझे। वाई एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3? हिंट दे दिया alternate मैंने। interior angle. These are alternate interior angles। Excellent। alternate interior angle Z बन रहा है, देखो बन गया alternate angles। ओके, सो पैरेलल लाइंस हैं, खाली Z बनने से मतलब यूं होता है, पैरेलल लाइंस भी होनी चाहिए। सो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं कहता हूं कि अंशुमान का वेट 50 केजी था ओम सारस्वत के इक्वल, और अगर मैं ये कह देता हूं कि प्रांजलि का वेट भी ओम सारस्वत के वेट के इक्वल है, अंशुमान का वेट ओम के इक्वल है एंड ओम का वेट प्रांजलि के इक्वल है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि अंशुमान का वेट भी प्रांजलि के इक्वल है? कैन वी से दिस? Yes. सेम थिंग इज हियर। एंगल 1 को ध्यान से देखिए, 2 के इक्वल है इक्वेशन 1 से। क्या दिख रहा है आपको? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंड इक्वेशन 2 में दिख रहा है कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, दैट मीन्स इन दोनों इक्वेशन से हमको दिख रहा है दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। दिख रहे हैं दोनों इक्वल, एंगल 1 एंड एंगल 3, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब एंगल 1 एंड एंगल 3 जरा ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? 1 एंड 3 फिगर में देखिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया इक्वल प्रूव 1 एंड 3। जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? दैट द लाइंस आर पैरेलल। अभी अभी मैंने थ्योरम का कन्वर्स बताया था। इफ टू Yes, sir. corresponding angles are equal then the lines are definitely parallel। so now we can say that therefore कौन सी लाइंस? AE and CF मिल गए हमको पैरेलल। therefore AE is parallel to CF। इसके बाद you are going to write a theorem when corresponding angles are equal then, बेटा गंदी राइटिंग को प्लीज थोड़ा इग्नोर कर दो। The lines are parallel। ठीक है, हो गया प्रूफ। AE को CF के पैरेलल प्रूव करना था, हमने कर दिया। देखिए कहीं पे कॉन्ग्रुएंसी का यूज करा, कोई कॉन्ग्रुएंसी यूज नहीं करा। Yeah, now tell me, do you have any doubt in the question? No, sir. No, sir. No doubt in the question? Everything clear? Very lengthy question it was। मतलब the last two questions were very quite lengthy इसलिए थे बिकॉज मुझे एक्सप्लेन काफी कुछ करना था दोनों क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट कुछ आप लोगों को याद दिलाने थे, दैट इज व्हाई। अदरवाइज ऐसे करने में कुछ लेंथी नहीं है। क्वेश्चन 10 कह रहा है
The lengths of the diagonals of a rhombus are 6. अरे beautiful question. अरे सर कल करेंगे ना सर कल beautiful. सर It is a- जैसे मीटिंग अंदर रही तो अच्छा नहीं लगता. नहीं okay, we are not doing it, but it is a beautiful question. rhombus की प्रॉपर्टीज कौन बताएगा मुझे? मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस मुझे rhombus की प्रॉपर्टीज बता दो. Sir, it has the properties of quadrilaterals, parallelograms. Very nice. And And what all else? sides are equal. Very all good. sides are equal. Very good. And one more left. The diagonals. Diagonals. The diagonals do not bisect. Bisect तो करते are ही. not equal. Not They equal are तो not equal. नॉट इक्वल टू ठीक है, चलो हो भी सकते हैं इक्वल, वो बात अलग है, लेकिन वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है. डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए प्रॉपर्टी नहीं है. वो प्रॉपर्टी ये है, जो प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो हर बार होता है, ऐसी चीज जो हर में हमेशा होगी, वो है कि रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्टर तो हैं, बिकॉज पैरेललोग्राम टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है रोम्बस, बट परपेंडिकुलर भी है. ये रोम्बस की स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है. क्या है वो? कि रोम्बस की डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. सो दीज प्रॉपर्टीज, all these properties, in fact, not all, two of these properties, that the diagonals bisect each other and they are perpendicular to each other, we are going to use in the question to do it. Okay, so we are going to do it tomorrow. Thank you everyone for the class. Very nice to meet you all.